Welcome to all of you again to Ignite Study Point. My lovely students, those who have taken alternative English, they will definitely find some questions in your board exam from preposition, the grammar chapter from prepositions, and it is an important topic of English grammar. It is a chapter which looks and feels easy, but the students are always confused at the time of using it, and it is also very necessary topic for the students who are preparing for the PO and Panchayat Executive Officer and Junior Assistant competitive exam and the different competitive exams also. So the students try to listen carefully the video fully because I am going to teach this topic from very beginning. Okay, then start. Preposition. Do you know what do you mean by preposition? And what are the role of a prepositions in a sentence? Let's discuss. Okay. So prepositions are a small set of English words or expressions that shows the relationship between a noun or a or pronoun and another word in the sentence. Okay, preposition are a small set of English words or expressions that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. Okay, so preposition होचला गोटे word जोटा कि गोटे दीटा noun भितर हो किंबा गोटे noun किंबा pronoun भितर हो सेटा कोन करबा ना रिलेशनशिप क्रिएट करे. जेमति हम देखिबा द बुक इज ऑन द टेबल. The book is on the table. The book is here also a noun and the table is also a noun. Okay, preposition is what? Na preposition is on. Okay, the book is on the table. বহিটি টেবুল উপরে আছে. সো এটি অনটা যে প্রিপোজিশন আমার লাগিলা এটি বুক গোটে নাউন টেবুল গোটে নাউন দুইটাক নাউন ভিতরে এটা কোন কলা না এটা রিলেশনशिप ক্রিয়েট কলা. সো অন এটি হল গোটে প্রিপোজিশন. প্রিপোজিশন মিন্স কোন আমি নর্মাল যে ইউজ করুছে on, in, at, before, after, so those are all are known as the prepositions. Okay, the second, the book on the table is mine. The book on the table is mine. टेबुल ऊपर जो बहीटा अच्छे से मोर. ओके, माइन माइन होगा कौन ना माइन इज ए जो माइन इज ए प्रोनाउन. ओके, द बुक इज हियर नाउन आम पढ़े ना. सो प्रिपोजिशन होगा गोटे वर्ड्स जोटा कि नाउन किंबा प्रोनाउन भितर कौन कर ना रिलेशनशिप क्रिएट कर. जमी द बुक द टेबुल भितर रिलेशनशिप क्रिएट कला. एमती द बुक बही टेबुल ऊपर जो बहीटा अच्छे से कार ना से मोर मोर इज माइन. द बुक ऑन द टेबल. ओके, सो आई पुट द बुक ऑन दैट टेबल. मु बहीटी को कौटी पकईली ना टेबुल ऊपर पकईली. सो ये ऑनटा भी गोटे आम कौन प्रिपोजिशन. ओके, सो दीज आर द प्रिपोजिशन. There are different types of prepositions. There are single word prepositions are there. Single word prepositions means we can say about is a single word, across, after, against, along, until, among, at, before, behind, below, up, beside, between, beyond, by, down in, upon, during, except, for, from, of, with, into, like, near, of, since, within, on, over, past, round, under, without, through, till, to, towards. So these are known as the single word preposition. Means only there are multi word prepositions according to, along with, apart from, as for, as to, because of, but for, due to, except for, in front of, in spite of, by means of, for the sake of, with a view to, in addition to, instead of, out of, opposite to, owing to, over and above, in comparison with, in relation to, prior to, together with. So those are the multi-word prepositions. Okay, so normally we have to very clear about all the single word prepositions or whatever we have. Okay, so a preposition joins a noun or a pronoun to another expression in the sentence. Okay, so first we will discuss how a preposition joins a noun or a pronoun. Okay, noun or a pronoun. Okay, so first we will discuss the book on the table. Here the book is the noun. Okay, the table is also noun. Noun means what? A noun means naming word जोटा कि आम ओडिया कहचे नामवाचक शब्द बा कर्ता बोली ताको आम कहचे. बुझला. सो एठी द बुक वाला भी गोटे नाउन, एटा द टेबल वाला नाउन. सो एठी प्रिपोजिशन कोन लागिছে ना ऑन लागिছে. ओके, an adjective. Then adjective देखियो adjective पाखरे केमती प्रिपोजिशन लागुছে ना ही इज गुड at mathematics. He is good at mathematics. एटी गुडटा कोन ना गुडटा होचला हमर adjective.
गोटे हूँ कौन ना एडजेक्टिव तेणु एडजेक्टिव एटी मैथमेटिक्स हूँ कौन गोटे नेम ऑफ ए सब्जेक्ट तेणु ये कौन लगे प्रिपोजिशन ये प्रिपोजिशन लगी आर्ट लगी आर्ट एच गोटे ये गोटे प्रिपोजिशन ओके देन ए वर्ब यू मस्ट लिसन टू योर टीचर यू मस्ट लिसन टू योर टीचर ये हूँ लिसन हूँ गोटे आम वर्ब सो लिसन मैंने कौन शुणा सो इट इज एक्शन वर्ड सो ये लगे प्रिपोजिशन ये कौन लगी टू लगी है लिसन टू ओके देन an adverb means adverb was the adverb is a word which tells or gives more information about the verb okay he writes well it well ta hochela amar adverb well pore it adverb pore preposition lagichi okay so that means hame kon dekhile eti hochela noun pore lagila eti adjective pore lagila mane ami preposition ro different uses पढुचे आम कौ जगार गोटे सेन्टेन्स लगे पार ना ये नाउन पर लगिला ये गोटे एडजेक्टिव पर लगिला गुड पर लगिला तापर ये लिसन टू भर पर लगिला ये हूँ एडभर पर लगिला ओके सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ ए व्हाट प्रिपोजिशन ऑफ ए नॉर्मली we will find three types of preposition. One is preposition of place, preposition of time, and other prepositions are there. So what are the prepositions that are there to describe the different place and the different time? Okay, so who are the preposition and what are the preposition that we can use at the time of describing about the places? By, beside, over, above, under, below, beneath, through, across, along, behind, before, between, opposite, off, towards, for, at, in, on, etc. So these are the different prepositions we can use at the time of using place. Then preposition of time, at we can use in, on, by, for, since, from, to, till, until, between, during, etc. These are the prepositions okay to describe the time periods. So first we will discuss about the preposition of place. Okay, preposition of place, there are two things you can find, at or in. Okay, preposition of place माने place को describe करबा बेले आम बेले बेले confusion हो जे at कोठी लगेबा आ in कोठी लगेबा ओके आम देखि पारो एटी लिखा है at is used to show the exact point. At is used to show the exact point. जदि सेंटेंस रे जो प्लेस टा लिखा है से प्लेस टा जदि से जो सेंटेंस टा जो विषय रे लिखा है से जगार जदि से प्लेस टा पूरा सठिक स्थान बा सठिक प्लेस जदि डिस्क्राइब करूची ताले से जगार हम एट लगेबा जेंते हम लिखि परिबा सी इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. सी इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट माने रास्तार गोटे कोण से छिड़ा है तेणु ये आमर लगे प्रिपोजिशन कौन लगे ना लगे एट लगे पूरा परफेक्ट प्लेस एट द डोर एट द बस स्टॉप माने परफेक्ट लोकेशन जिन जना पड़ो जन तुम तुम कौन छिड़ाई तुम सांग तुमको पचार कौट छिड़ाई तुम सांगे सांगे कौच मुझे छिड़ाई जब पूरा परफेक्ट प्लेसटा कौच ताले से एट लगे जमी लिखाई ही लिव्स एट 95 बापूजी नगर है ही लिव्स एट 95 बापूजी नगर ये पूरा घर से रहे कौट रहे ना बापूजी नगर एट 95 हाउस नंबर 95 है दैट मीन्स पूरा परफेक्ट लोकेशन से कह तेणु एट लगे ना जब लिख ही लिव्स भुवनेश्वर से इन भुवनेश्वर लिखा कहीं भुवनेश्वर गोटे बड़ एरिया कौटी भुवनेश्वर सठिक प्लेस लिखाई सो से इन लगे किंतु जब परफेक्ट लोकेशन लिखाईगला तो आम एट लगे लिखाई सी वर्क्स एट द पब्लिक लाइब्रेरी. पब्लिक लाइब्रेरी सी वर्क्स एट द पब्लिक लाइब्रेरी ये पब्लिक लाइब्रेरी लिखा से काम करती कौटी काम करती ना पब्लिक लाइब्रेरी. सो नॉर्मली गोटे सिटी रे पब्लिक लाइब्रेरी गोटे थाए जो समस्त पढ़ापढ़ी करती ओके सी वर्क्स एट द पब्लिक लाइब्रेरी जो एट लगे प्रिपोजिशनटा ये एट प्रिपोजिशनटा हूँ आमर कौन पे लगे जेहतु ना परफेक्ट लोकेशन जना पड़गला सी वर्क्स एट द पब्लिक लाइब्रेरी और एट द सिटी जनरल हॉस्पिटल तेणु सिटी जनरल हॉस्पिटल कौन ओनली वन थी तेणु से लगे पूरा परफेक्ट लोकेशन जना पड़ा कौटी कम करती तेणु एट मन सपोज जन कह मो फादर वर्क्स इन ए बैंक कहीपर माय फादर वर्क्स इन ए बैंक कहीपर इन ए बैंक कहीं लिखा ना देर आर सो मेनी बैंक्स इन आवर एरिया ओके इट नॉट इट डज नॉट डिफाइन एनी द व्हाट नेम ऑफ ए बैंक इन व्हिच बैंक योर फादर वर्क्स है तुम बापा कौटी काम करते कौ बैंक काम कर लिखाए तेणु ओनली खाली बैंक लगे तेणु इन ए बैंक ना जब बैंक नेम लिखाई ताल से एट लगे एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
कि एट द व्हाट HDFC व्हाट एवर इट मे बी जदि बैंक ना लिखा है ताले एट लगेबा जदि बैंक ना न लिखा है ताले हम इन लगेबा जमती लिखा है दे मेट एट द क्लब से कौट देखा है ना क्लब रे देखा है क्लब हो एट द स्टेशन हो पार्टी हो ओके सो दिस आर द यूज ऑफ आर्ट द यूज ऑफ आर्ट आर्ट ऑफ इन यूजेस आम कौन जानी डिफरेंस कौन ना जदि कौन प्लेसटा जदि परफेक्ट लोकेशन लिखाई ता पूर्व आम आर्ट लगेबा ना जदि परफेक्ट लोकेशन लिखाई जना पड़ुनी एक्चुअली परफेक्ट लोकेशन ताले सेठी इन लगेबा है जमती लिखा हम कही पारे ही लाइक्स लिखाई यूजेस ऑफ इन रे he likes to spend the holiday in the country लिखाई कंट्री मीन्स कौन ना गोटे देश सो देश मीन्स गोटे बहुत बड़ एरिया ही लाइक्स टू स्पेंड द हॉलीडे तार छुट्टी दिन को से बिताइबा चाहूँगी कौटी बिताइबा चाहूँ परफेक्ट लोकेशन लिखाई जब परफेक्ट लोकेशन लिखाई था से आन लिखी था किंतु परफेक्ट लोकेशन लिखाई कंट्री लिखाई तेना कंट्री मीन्स बहुत बड़ जगह से इन लगे जदि कंट्री कौ जगह होता ताले से कौन लगे एड लगे जमी लिखाई नेक्स्ट ही लिव्स इन लंडन लिखाई लिखी से लंडन लिखीदे प्लेस किंतु लंडन कौटी लंडन तो बहुत बड़ एरिया कौटी से शो करनी तो परफेक्ट लोकेशन ना तो से कौन लगे ना इन लगे ही लिव्स इन लंडन ओके देन माय ब्रदर वर्क्स इन ए बैंक जोटा कि आम डिस्कसन करें जो सेंटेंसटा माय ब्रदर वर्क्स इन ए बैंक लिखला तेणु कौ बैंक ये नेम ऑफ बैंक मेंशन नहीं सो से कौन लगे ना इन लगे माय ब्रदर वर्क्स इन ए बैंक जदि लिखी था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि HDFC कि IDFC ताहले से एड लगी था कि नेम ऑफ बैंक शो करनी तेणु से इन लगे इन ए बैंक इन एन ऑफिस इन ए फैक्ट्री इन ए शॉप जेको जगह काम करते जी भी रिलेटिव्स तुम तेणु जो परफेक्ट लोकेशन दे कौ जगह काम कर इन जो आर्ट लगेबा ना जो परफेक्ट लोकेशन जना पड़न तो से आर्ट लगेबा बुझीगला एति गला डिफरेंस द यूजेस ऑफ आर्ट एंड इन ओके next we will discuss about the uses of on okay uses of on we will discuss uses of on if the places of work are not buildings से कहला जदि काम करूथार जगह जदि बिल्डिंग हे नथिबो माने खोला जगह हेतिबो ताले सेटा को हम सेठी ऑन लगेबा जेमति लिखिला ही इज वर्किंग ऑन ए फार्म ऑन ए रबर प्लांटेशन ऑन ए फार्म फार्म मीन्स कोन खोला पड़िबा चाष जमी ओके ही इज वर्किंग ऑन ए फार्म एटा बिल्डिंग नो तो सेठी ऑन लगिला जेमति लिखला द मीटिंग वाज हेल्ड ऑन द प्रेमिसेस और ऑन द कैंपस ऑफ द कॉलेज ओके ये ऑन द कहीं लगी ना कैंपस मीन्स तो कहीपर कॉलेज बाउंड्री किंतु कैंपस ये कहीपर ये माने खोला जगह हो कॉलेज तो से लिखी ऑन लगे से कहूँ जब काम करूता जगह इफ द प्लेसेस ऑफ वर्क आर नॉट बिल्डिंग्स देन ऑन इज यूज जदि काम करूता जगहटा ऑन काम करूता जगहटा जदि बिल्डिंग न होइतिबो माने खोला जगहटा होइतिबो क्लोज सर्किट क्लोज्ड ही नथिबो खोला जगह होइतिबो त सेठी हम ऑन लगेबा जेमि लिखला ही इज वर्किंग ऑन ए फार्म ओके द नेक्स्ट यूजेस ऑफ ऑन रो नेक्स्ट यूजेस कौन ना ऑन इज यूज टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ टचिंग और क्लोज कॉन्टैक्ट ओके प्लीज लिसन केयरफुली दिस थिंग्स सो फर्स्ट यूजेस कौन रहा ऑन रो ना फर्स्ट यूजेस होचला इफ द प्लेसेस ऑफ वर्क आर नॉट बिल्डिंग्स जदि काम करूथबा जगह गुड़िक बिल्डिंग हे नथिबो खोला जगह हेतिबो ताले सेठी हम कोन यूज करबा ना ऑन यूज करबा जेमति लिखा है ही इज वर्किंग ऑन ए फार्म एटा हम बुझिले फार्मटा मीन्स खोला जगहटा सेठी ऑन लगिला आउ गोटे सेकेंड यूजेस होचला ऑन रो सेकेंड यूजेस होला ऑन इज यूज टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ टचिंग और क्लोज कॉन्टैक्ट माने जो दीटा जिनस विषय में जो डिस्कशन करबा से दीटा को जिनस विषय कोन ना हमरो क्लोज कॉन्टैक्ट रहबो क्लोज कॉन्टैक्ट बा टच रहबो बुझेला जेंति लिखिला देयर इज ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड देयर इज ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऊपर नोटिसटा लगाई माने बोर्ड ऊपर जो नोटिसटा लगी सेटा नोटिस रो सरफेस और नोटिस बोर्ड रो सरफेस दीटा को मध्य क्लोज कॉन्टैक्ट थी पूरा लगी ना नोटिसटा छाड़ी तो नथिबो ना नोटिसटा नोटिस बोर्ड लगी क्लोज कॉन्टैक्ट थी नोटिस बोर्ड हो कि वाल रे कांथे हो तेणु दीटाकर कौन नोटिस और नोटिस बोर्ड रो दीटाकर क्लोज कॉन्टैक्ट थी टच होते जमी लिखला ही इज सिटिंग ऑन द ग्रास जदि आम घास उपर बसिबा घास उपर लगी बसिबा ना छाड़ी बसिबा लगी बसिबा क्लोज कॉन्टैक्ट रहा ही इज सिटिंग ऑन द ग्रास तो सेठी ऑन लगिला देन ऑन द बेंच जो बेंच ऊपर हम बसुचे बेंच ऊपर लगी बसे ना छाड़ी बसे लगी बसे दैट मीन्स कौन रोचे ना क्लोज कॉन्टैक्ट रोचे तो सेठी आम ऑन लगेबा ऑन द बेंच ओके देन ऑन ए चेयर ऑन द फ्लोर ये टाइप वी हैव टू यूज ओके ऑन
देन ही केप्ट हिज बुक्स ऑन द सेल्फ से तार बही को कौट रखिला ना थाक ऊपर रखिला ये ऑन लगिला द सेल्फ अच्छे थाक ऊपर रखिला तेणु ऑन द सेल्फ मैंने थाक ऊपर जो रख बुक्र सरफेसटा आ कांथर जो थाकर सरफेसटा दुईटा को टच हे तेणु कौन देला क्लोज कंटाक्ट है जमी मुझे कहीपरि एटा जो इट इज माय पाम एटा मो पापुली हाथ आपर मु पेनसिलटा रखिली तो पेनसिलर सरफेस आउ हाथर पापुलर सरफेस दुटा कौन टच है दैट मीन्स ये कौन क्लोज कंटाक्ट रहा तेना आम लिखिपर द पेनसिल इज ऑन माय पाम मो पापुली उपर अच्छी ओके सो यहाँ कहते क्लोज कंटाक्ट है देन थर्ड यूजेस कौन रहा ऑन रो थर्ड यूजेस है ऑन इज यूज टू इंडिकेट प्रोक्सीमेटी टू मीन टू क्लोज माने प्रोक्सीमेटी माने पाखापाखि एवं क्लोज जो रोथुवा क्लोज रिलेशन जमी कहला ही इज सिटिंग ऑन माय लेफ्ट ही इज सिटिंग से बसी अच्छी ऑन माय लेफ्ट मोर बाँ पटे बसची कि मोर डाण पटे आम कहूने एमती से मोर बाँ पटे बसची कि से मोर डाण पटे बसची तो आम से लिखा ही इज ऑन माय लेफ्ट और ऑन माय राइट ऑन माय लेफ्ट लिखिपर कि ऑन माय राइट लिखिपर ओके देन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हरिद्वार इज ऑन द गंगा माने हरिद्वारटा गंगा नदी कूल अच्छे तेणु ये केस ऑन लगे पार ओके देन कटक ऑन महानदी एमती लिखिपर तार ए विलेज इन द ऑन द फ्रंटियर ओके ये टाइप वी कैन यूज जस्ट लाइक दिस ओके ऑन रो यूजेस हम कौन कौन देखिले ना फर्स्ट यूजेस है इफ द प्लेसेस ऑफ वर्क आर नॉट बिल्डिंग्स जदि काम कर जगह गुड़िक बिल्डिंग्स न हो तापर आउ सेकेंडा पढ़ले जदि ऑन इज यूज टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ टचिंग और क्लोज कंटाक्ट जदि दुईटाक कौन दुईटाक जो नाउन रो क्लोज कंटाक्ट हो सेठी हम यूज करवा आउ गोटे ऑन रो थर्ड यूजेस है प्रोक्सीमेटी और क्लोज टू ओके सो दीज आर द ऑल अबाउट व्हाट यूजेस ऑफ ऑन देन नेक्स्ट विल डिस्कस बाय और बिसाइड बाय और बिसाइड मीन्स कौन कहे जो ओडिया रे हम कहबा पाखरे है पाखरे कहि परबा हम मीनिंग कहबा बाय और बिसाइड रो जमती लिखले एठी यूज कले कौन ऑनटा सेमती एठी भी यूज कर पारे ही इज सिटिंग बाय मी और बिसाइड मी बाय माय साइड जहाँ आम लगे पार से मो पाखे बसी से मो पाखे बसी तेणु आम लिखिपर सी इज ही इज सिटिंग बाय मी और बिसाइड मी जोटा लगे आम ठीक हे बाय मी कि बिसाइड मी आम यूज कर बाय और बिसाइड रो यूजेस होचला एटा ओके देन आ गोटे देख रहा ओभर एंड एभव ओके समस्त तुम पढ़ी बेले बेले भी कन्फ्यूज हुआ जे ओभर कोट कोट यूज करवा आ एभव कोट कोट यूज करा कहीं ओभर माने भी होचला ऊपर एभव माने भी होचला ऊपर ओभर माने भी ऊपर एभव माने भी ऊपर है ताले ओभरटा कौट लगेबा आ एभवटा कौट लगेबा इट इज ए ग्रेट क्वेश्चन आ गोटे कौन देखिले ना ऑन माने भी ऊपर ओभर माने भी ऊपर आ एभव माने भी ऊपर सब जगह ऊपर माने ओडिया अर्थ जदि बुझिबा ऑन माने ऊपर ओभर माने ऊपर एभव माने भी ऊपर है ताले कौट ऑन तो कौट के लगे आम एटा ऑलरेडी बुझी सारे बर्तमान पढ़ा ओभर और एभव भितर डिफरेंस कौन सी कहला ओभर मीन्स बोथ वर्टिकली एभव एंड हायर दैन ओभर रो अर्थ होचला वर्टिकली पर एभव रहिबो एवं उच्चर रहिबो एभव रो अर्थ होचला हायर दैन आम एटा एग्जांपल बुझी पढ़िले द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओभर द हेड ये कौन दुईटा नाम कहला गोटे होचला एरोप्लेन आउ हेड माने एरोप्लेनटा मुंड ऊपर उड़ुची मुंड ऊपर उड़ुची अच्छा आम ऊपर ये मीनिंग है ये मुझे ऑन द हेड लगे पारे ये लिखी मुझे लिखी द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ऑन द हेड माने कौन कहला ऑन माने कहला आम क्लोज कंटाक्ट तार अर्थ एरोप्लेनटा मुंडे लगिक जाऊँगी दैट इज इट पॉसिबल मुंडे लगे नहीं ना तेणु ओभर फ्लाइंग माने हरे आम कौन लिखिले वर्टिकली एभव माने ऊपर एमती उड़िकी जाऊँ मुंड ऊपर छाड़िक ऊपर पूरा उड़िकी जाऊँ वर्टिकली एभव लिखा इज फ्लाइंग ओभर ही हंग ए कैलेंडर ओभर द फायर प्लेस है कि सी कौन कर तार कैलेंडर को कौन कर फायर प्लेस होता गोटे घर जगह माने तुम फिल्म मानक देखि फायर प्लेसटा है तेणु फायर प्लेस ऊपर टंगाई कौटा कैलेंडरटा से ओभर लिखा कहीं छाड़िक लगी ओके यहाँ होगा कौन ओभर पढ़िले यहाँ होगा वर्टिकली एभव एभव अर्थ कौन देखा मन देखिए बुझे देर इज ए टेम्पल एभव द हाउस देर इज ए टेम्पल एभव द हाउस माने मंदिरटा कौटी अच्छी ना मंदिरटा अच्छी हाउस ऊपर घर ऊपर आर अर्थ कौन तुमको लगुच जो घर ऊपर मंदिर अच्छे ता नुहे तुम देख बेले बेले दूर रू माने देखा जाउथबो जंदि मंदिरटा घर ऊपर थिला बेले ता माने दैट मीन्स कौन माने टेम्पल रो हाइटटा घर रो हाइट टू अधिक
एवं दूर देखले जना पड़ुथबो जे टेम्पलटा कोन घर ऊपर अछि हैला। तो ए केस रे एटा होचला एट हायर लेवल माने हायर मीन्स कोन एटी कंपैरेटिव डिग्री यूज हैला बुझला हायर लेवल माने घर रो हाइट थारो टेम्पल रो हाइट अधिक तेणु हमको से जना पड़ुछि जे टेम्पलटा घर ऊपर अछि बोली हैला। सो सेति पे एटी लिखा हला देयर इज ए टेम्पल एबव द हाउस तेणु एटी ओवर आ एबव भितर एतिक डिफरेंस हो ओके। ओवर हैज आल्सो द मीनिंग ऑफ एक्रॉस ओवर रे भी एक्रॉस रो मीनिंग आसुछि ओके। जेमति लिखुछ हमें देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर ब्रिज टी नदी ऊपर दे जाइछि ना कि ब्रिज ओवर द रिवर एटा एटी ओवर अर्थ माने एटी ओवर अर्थ हला एक्रॉस एक्रॉस रो अर्थ को ना फ्रॉम वन साइड टू द अदर गोटे पटु पूरा आ गोटे पटु माने ब्रिज रो गोटे पट जो रिवर रो गोटे पटु आ गोटे पट गोटे पार्श्व रो अन्य को पार्श्व पर्यंत ब्रिज टा तैयारी होइছে तो देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर ओके। देन ही जंप्ड ओवर द ब्रुक ही जंप्ड ओवर द ब्रुक ही क्लाइम्ड ओवर द वॉल से पूरा कौन कला ना कांथ ऊपर चढ़िला ना कांथर एपटू पूरा सेपट पर्यंत पूरा चढ़िला तो ये भी आम ओवर ये ए मीनिंग रे लगे पारिबा हैला। तापर आउ गोटे यूजेस अछि ओवर एंड एबव एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ग्रेटर इन नंबर वेट एंड मोर देन ओवर और एबव मध्य कोडी यूज हे परिबो ना ग्रेटर इन नंबर माने संख्या जोटी अधिक थिबो वेट ओजन रे अधिक थिबो हैला। सो से केस रे हमें ओवर किबा एबव मध्य यूज कर पे जने लिखला एप्लिकेंट्स ओवर एंड एबव द एज ऑफ 30 मस्ट नॉट अप्लाई माने हम कोन जिनसटा अप्लाई करियो जाउचे सेटा ऑलरेडी गोटे लिखि देथिबो गोटे नोट लिखि देथिबो एप्लिकेंट्स ओवर एंड एबव ओवर द एज ऑफ किबा एबव द एज ऑफ 30 मस्ट नॉट अप्लाई जो मानकर बयस 30 वर्ष ऊर्ध्व से माने अप्लाई करि परिबे नाही तो ए केस रे मते हम एठी ओवर किबा एबव दीटा को जोटा हम एठी लगै परिबा हैला कि ओवर एंड एबव रो यूजेस एटा मन रखियो सब बेले जोटा कि हम दीटा को पढिले जेंति गोटे टेम्पल घर रो हम एग्जांपल नेले देयर इज ए टेम्पल एबव द हाउस ए केस रो माने दीटा हमर हाइट रो जदी कंपैरिजन होचे तले सेठी एबव लगेबा ना जदी किबा किछि गोटे मुंडो ऊपर हमर उडी के जाउचे किबा मुंडो ऊपर किबा कोनसी जागा रे जिंस ऊपर छाडी के जेंति हम एठी गोटे एरोप्लेन पढिले आ उडले कैलेंडर रोडेबा तो ए केस रो चला हम एठी एमती मीनिंग ए बळे भागर अर्थ आसले हम से वी हैव टू यूज ओवर ओके। Then we will discuss about the under, below and beneath. Okay, under, below and beneath. Okay, so then in this class this is for today. We will discuss further preparation in the later classes. Okay, thank you for this video. Just like, share and subscribe. Thank you.